Good morning, students. How are you all? I hope after vacations you are back with great enthusiasm. So, welcome back to online classes. Today we are going to read our third chapter, Some Apples, Please. Here you can see get started. Let's start it. Use the clues to complete this crossword. The clues describe different kinds of fruit, some words in common. This is very easy. You can do it your own. With the help of clues, you have to complete this crossword. And unscramble the names of some more fruits given in the slice of watermelon. Write them on the blanks. This is very easy task. Now move to the chapter. There is an old saying, where there is a will, there is a way. Old saying mean एक पुरानी कहावत है. You have heard this thought so many times. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह. What does it mean? If you really want something and work hard for it, you will get it. When you are passionate about a thing, definitely we can achieve that thing by doing hard work. Read this retelling of an English folk tale to see how a woman gets what she wants by being kind and helpful. This is a story, this is a folk tale about a woman that is very kind and helpful by nature. Folk tales. What do you understand by folk tale? Folk tale are those stories which passes generation to generation. Like your grandparents told to your parents some stories. After that, your parents told you those stories. That is called folk tale. Now let's move forward to section 1. This happened a very long time ago in England. This folk tale happened in England. There was a little old woman who lived in a little cottage in a village. This folk tale is about a little old woman who lived in a little cottage. You can see the picture of cottage, small hut. One day she wanted to eat an apple pie. One day what happened? She wanted to eat an apple pie. What is an apple pie? Pastry जो कि एप्पल का यूज़ करके बनती है. Baked dish of pastry filled with sweetened apples. The more she thought about it, the more she wanted to eat an apple pie made of juicy red apples. Her mouth is full of water when she thought about apple pie. जितना वो ज़्यादा सोचती थी एप्पल्स के लिए, उसका एप्पल पाई खाने को और भी ज़्यादा मन करने लग जाता था कि किसी तरह उसको जूसी रेड एप्पल्स मिल जाए so that she can make an apple pie. But she had no apples. She had a pear tree full of ripe yellow pears and a plum tree full of juicy red plums. But उसके फार्म पे कौन कौन से ट्रीज थे? Pear and plum trees. But how can one make an apple pie with pears or plums? And the old woman longed for an apple pie. Longed for meaning wanted very much. The old woman wanted very much an apple pie. I know what to do. I'll take some of my plums to the market and get apples in exchange for them. Now she thought, she was talking to herself, that I will give plums to somebody. Definitely that person will give me an apple pie. तो उसने सोचा कि अब वो मार्केट जाएगी और मार्केट जाकर प्लम्स के एक्सचेंज में वो एप्पल्स को ले लेगी और फिर एप्पल पाई बेक करेंगे, पेस्ट्री बनाएंगे वो एप्पल की. सो शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, आई विल टेक सम ऑफ माई प्लम्स टू द मार्केट एंड गेट एप्पल्स इन एक्सचेंज फॉर देम. So she set off with the plums in a basket on her arm. What did she do? She started her journey. Set off means started her journey with the plums in a basket on her arm. See, she is having a plum basket on her arm. As she walked along the road, she heard a lot of cackling and quacking.
As the old woman started her journey along the road, she heard a lot of cackling and quacking. Cackling and quacking are the sounds of hens, ducks, and geese. She peeped over the hedge and saw a young woman trying to herd a flock of hens, ducks, and geese. What is the meaning of peeped? To look something quickly. तो जैसे ही उसको कैकलिंग और क्वेकिंग की साउंड आती है ओल्ड वुमेन को, शी पीप्ड ओवर द हेज, कि वो देखने लग जाती है हेज के ऊपर से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज? बाउंड्री. एंड सॉ अ यंग वुमेन ट्राइंग टू हर्ड अ फ्लॉक ऑफ हेन्स, डक्स एंड गीज. A young woman is here and she is trying to collect the hens, ducks and geese. The young woman looked up. तभी जब यंग वुमेन ने देखा कि ओल्ड वुमेन उसके सामने खड़ी है, तो उसने ऊपर देखा कि हु इज़ देयर. हेलो, शी सेड, आरंट दीज बर्ड्स नॉइजी. विश किया पहले ओल्ड वुमेन ने यंग वुमेन को. देन शी आस्क्ड कि ये बर्ड्स जो हैं आपके वो ज़्यादा शोर नहीं करते, ज़्यादा नॉइजी नहीं है. देन द यंग वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड टॉकिंग लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. दे मेट फर्स्ट टाइम बट आफ्टर दैट दे वर टॉकिंग लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, की काफ़ी दिनों से वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि उनका नेचर जो है वो बहुत जॉली है. The old woman showed the young woman the plums and said how much she wanted to eat an apple pie. तब ओल्ड वुमेन उसको बताती है कि ये देखो मेरी बास्केट में प्लम्स हैं, और उसको उसने बताया, शी टोल्ड द यंग वुमेन दैट हाउ मच शी वांटेड टू ईट एन एप्पल पाई, कि उसको कितनी ज़्यादा वो पैशनेट है एप्पल पाई बनाने के लिए, कि किसी तरह भी उसको एप्पल मिल जाए और वो एप्पल पाई बना सके. Oh, said the young woman, my husband wants to have plum jam. वो कहती है, अच्छा आपके पास प्लम्स हैं, मेरे हस्बैंड को प्लम जैम जो है वो बहुत पसंद है. And I have no plums at all on the farm. I would love some, but I have no apples to give you. I can only give you a bag of feathers in exchange for them. Now, what did the young woman say to the old woman? That I have no apples to give you in exchange of plums, but I have a bag of feathers that can I give you. Well, said the old woman looking at the juicy red plums. अब old woman का reaction कैसा था? How did she react? Well, okay. तो वो अपने juicy red plums को देखने लग जाती है, क्योंकि उसकी विश तो अभी भी पूरी नहीं हुई थी. Still he is waiting for apples to make an apple pie. I suppose at least one of us will have our wish. तो ओल्ड वुमेन जो थी वो बहुत काइंड थी. शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी एंड जेनरस लेडी. सो शी सेड कि चलो, कि इतना हो सकता है कि चलो हम दोनों में से किसी एक की विश तो एटलीस्ट पूरी हो रही है. डोंट वरी, यू कैन टेक प्लम्स टू मेक जैम फॉर योर हस्बैंड. सो शी गेव द प्लम्स टू द यंग वुमेन एंड टुक द बैग ऑफ फेदर्स एंड पुट इट इन टू हर बास्केट. तो उसने यंग वुमेन को प्लम्स दे दिए, और जो फेदर्स बैग था उसने अपने बास्केट में उसको रख लिया. शी केप्ट द फेदर्स बैग इन हर बास्केट. एटलीस्ट द फेदर्स वर लाइटर टू कैरी. फेदर्स तो बहुत लाइट वेट होते हैं, फेदर्स बहुत हल्के होते हैं ना बर्ड्स के फेदर्स, तो उनका मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं था, तो वो कैरी करने में उसके लिए बहुत ईजी थे. शी सेट ऑफ, अगेन द वर्ड हेयर इज सेट ऑफ. शी स्टार्टेड हर जर्नी once more for the market, hoping that she would get some apples for the feathers. Still she is hoping that she would get some apples for the feathers, कि अब feathers के exchange में मे बी उसको apples मिल जाएं. The road was long and she walked until she came to another farm. अब रास्ता जो था, रोड जो था वो बहुत लंबा था. And she walked until she came to another farm. तो जब तक वो दूसरे फार्म पे पहुंचती है तो वो चलती रहती है. द मोस्ट डिलीशियस स्मेल्स केम फ्लोटिंग आउट ऑफ द किचन विंडो ऑफ द फार्म हाउस. जैसे वो एक नेक्स्ट फार्म हाउस में पहुंचती है, एज ही रीच्ड टू द नेक्स्ट फार्म हाउस, अ डिलीशियस स्मेल केम फ्लोटिंग आउट ऑफ द किचन. तो फार्म हाउस की किचन में से एक डिलीशियस स्मेल जो है वो फ्लोट करके
आ रही होती है। फ्लोटिंग मीन्स ये देखो, स्मेल उसके वो स्मेल करती है कि यहाँ किचन में से, फार्म हाउस की किचन से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। The old woman stopped at the gate to smell the fresh bread and cakes. As she stood there, she heard a man and woman quarreling loudly. When she stopped at the gate, what did she listen? She heard a man and a woman quarreling loudly. Quarreling means fight कर रहे होते हैं, वो argument कर रहे होते हैं, हस्बैंड और वाइफ बड़ा ज़ोर ज़ोर से लाउडली वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। इट इज़ बेस्ट टू स्टफ अ पिलो विथ स्ट्रॉ, सेड द वुमेन इन एन एंग्री वॉइस। वुमेन क्या कहती है कि पिलो को स्ट्रॉ से स्टफ़ करना ही बेटर होगा, तो हम अपने पिलो में स्ट्रॉ का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉ क्या होती है? ड्राई ग्रास। लाइक आपने देखा होगा आपके मैट्रेसेस में भी मतलब होती है स्ट्रॉ। हैव यू सीन? मामा से पूछना कि मामा मैट्रेसेस में किस टाइप की स्ट्रॉ होती है, ठीक है। सेड द वुमेन इन एन एंग्री वॉइस, बड़े गुस्से से वो बोलती है, आई डोंट थिंक सो, कॉटन इज़ बेस्ट, इजंट इट मच सॉफ्टर, सेड द मैन इन एन एंग्रियर वॉइस। फिर वो मैन भी जो है वो बड़े गुस्से से बोलता है कि मुझे नहीं लगता स्ट्रॉ से जो है वो पिलो सॉफ्ट होंगे, कॉटन बेस्ट है और कॉटन ही हम अपने पिलो में स्टफ़ करेंगे। हेलो, सेड द ओल्ड वुमेन। अगेन द ओल्ड वुमेन कॉल्ड देम, विश करते हैं उनको। द वुमेन एंड द मैन टर्न टू लुक एट हर। तभी वो मैन और वुमेन हस्बैंड वाइफ पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन है। ओ वुड यू प्लीज़ हेल्प अस सेटल दिस, इज़ इट बेटर टू स्टफ अ पिलो विथ स्ट्रॉ और कॉटन, वी कांट एग्री, सेड द वुमेन। तो वो अपनी सेटलमेंट जो है वो ओल्ड वुमेन को बोलते हैं कि हमारी सेटलमेंट करो किसी तरह, हमारी जो मतलब आर्ग्यूमेंट है उसको प्लीज़ हमें कोई सोल्यूशन बताओ कि आपको क्या लगता है कि पिलो को स्ट्रॉ से स्टफ़ करना बेटर होगा कि कॉटन से। ओह नाइदर, सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने कहा कि नहीं, ना तो आप पिलो को स्ट्रॉ से स्टफ़ करो ना कॉटन से, दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं। आई वुड स्टफ़ इट विथ फेदर्स, कि अगर मुझे ऐसा मतलब होगी ऑप्शन तो मैं फेदर से ही उसको स्टफ़ करूँगी पिलो को। फेदर्स मेक द बेस्ट पिलो। द ओल्ड वुमेन सेड फेदर्स आर सॉफ्ट सो इट मेक योर पिलोज द बेस्ट। ओह बट वी डोंट हैव फेदर्स, सेड द कपल सैडली। कपल ने बड़ा सैडली बोला कि हमारे पास तो फेदर्स हैं ही नहीं, वी डोंट हैव फेदर्स। That is hardly a problem, answered the old woman quickly, and she gave the bag of feathers to them. तो old woman के पास तो already she was having a bag of feathers, तो उसने offer किया कि this is not a problem for you, I have a bag of feathers, so I will give you. Oh, thank you, said the couple. They said excitedly that, oh, thank you that you have solved our problem. I would love to have some apples in return, said the old woman. तो ओल्ड वुमेन ने उनके सामने अपनी विश रखी कि ठीक है, आई कैन गिव यू फेदर्स बैग बट इन एक्सचेंज आई वॉन्ट सम एप्पल्स। व्हाट डू यू थिंक कि उनके पास एप्पल्स होंगे? लेट्स रीड। वी हैव नो एप्पल्स, ओह माई गॉड, बट हेयर इज सम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, सेड द मैन एंड गेव हर 2 large loaves फ्रेश फ्रॉम द ओवन। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास एप्पल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? बेक्ड ब्रेड हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, और 2 बड़े बड़े लोव्स ब्रेड के ओवन में से निकाल के वो ओल्ड वुमेन को दे देते हैं। वेल एटलीस्ट आई कैन हैव ब्रेड एंड सूप फॉर डिनर। नाउ द ओल्ड वुमेन गिव थैंक्स टू देम कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अपने डिनर के लिए तो एटलीस्ट कुछ मिल गया है, अब मैं अपने डिनर के लिए ब्रेड एंड सूप ले लूँगी। I will have bread and soup for my dinner, thought the old woman. Even if I didn't get any apples, I did stop the quarrel. Old woman अब थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है कि अगर मुझे एप्पल नहीं मिले तो क्या मुझे जो अपना एप्पल के लिए जर्नी है वो स्टॉप करनी होगी। तो वो मतलब सोचने लग जाती है कि चलो डिनर के लिए ब्रेड एंड सूप तो है ही है मेरे पास, पर लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो स्टूडेंट्स,
This was your section 1. You have to read this chapter carefully. In next video, we will read section 2 and we'll do exercise work. So students, read it carefully. Have a nice day. Bye-bye.